तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की बदउनवानी किए जाने पर केसीआर पर तनकीद की और मुतनब्बा किया कि उन्हें कलेश्वरम में बदउनवानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के नलगुंडा के जलसे-आम में किए गए तबसरों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि केसीआर एक चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। केसीआर के पास बतौर वजीर आला और एक एमएलए का तवील तजुर्बा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि चीफ मिनिस्टर के बारे में कैसे बात करनी चाहिए। कलेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की बदउनवानी किए जाने का खुलासा करते हुए रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि प्रोजेक्ट नाकाम हो जाने पर केसीआर ने उसका मुआयना क्यों नहीं किया। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि केसीआर को कलेश्वरम में बदउनवानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मेदीगड्ढा प्रोजेक्ट टूट जाता है तो क्या वो उसे देखने नहीं आएंगे। चीफ मिनिस्टर ने केसीआर को मुखातिब करते हुए कहा कि वो फिलहाल फार्म हाउस में छुपे हुए हैं। केसीआर की असेंबली न आने पर रेवंत रेड्डी ने शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि जब भी केसीआर ऐवान में आएंगे वो बहस के लिए तैयार है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट और गोदावरी के पानी पर भी बातचीत के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने बीआरएस के एमएलए पर जोर दिया है कि वो केसीआर को ऐवान में लाए। మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న నల్గొండ జిల్లాలో వాడిన భాష మీద చర్చ చేద్దామా అధ్యక్ష? ఏం బీకనికి పోయినరని అడుగుతాడా అధ్యక్ష? మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా 10 ఏళ్ళు పనిచేసి, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసి, రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేసి, శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసి, పార్లమెంటుగా పనిచేసి, గొప్పలు చెప్పుకొని జబ్బలు జరుచుకునే ఉద్యమకారుని అనేట ఆయన ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదాలో ఉండి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బీకనిక పోయినావు అని అడిగితే, రా ఇప్పటికే ప్రజల్ని పాయింట్ ఊడబిక్కురు, ఉన్న అంగి చొక్కా కూడా ఊడబిక్తాం. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రజలు మొన్న జరిగిన ఎన్నికలలో మీ పాయింట్ ఊడబిక్కిరు. ఇవాళ ఆ పాయింట్ ఊడబిక్కితే చెప్పుకునే దిక్కులేక బొక్కబోర్లో పడితే బొక్కలు ఇరిగినాయి మీకు. అయినా మీ బుద్ధి మారలేదు. ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బీకనిక పోయినావని అడుగుతారా అధ్యక్ష? ఇది పద్ధత? ఈ రాష్ట్రం 4 కోట్ల ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బీకనిక పోయినావని అంటారా అధ్యక్ష? ఇదేనా తెలంగాణ సాంప్రదాయము? ఈరోజు నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నా అధ్యక్ష, ఈరోజు మేడిగడ్డ మేడి పండులాక కుంగిపోతే మేడిగడ్డల నీళ్లు నింపడానికి అవకాశం ఉందా అధ్యక్ష? ఇవాళ మీరే సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రులుగా పనిచేసారు కదా. చంద్రశేఖర్ రావు గారు, హరీష్ రావు గారు ఇద్దరు సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా పనిచేసారు కదా అధ్యక్ష. ఈరోజు వాళ్ళకే పెత్తనం ఇస్తాం, వాళ్ళనే చేయమని ఉండ్రి. ఈరోజు ఏ రకంగా మేడిగడ్డలో నీళ్లు నింపుతారో, మేడిగడ్డ నుంచి నీళ్లు ఎత్తి అన్నారంలో పోస్తారో, అన్నారంలో నుంచి సుందీలలో ఎట్లా పోస్తారో బాధ్యత వాళ్ళని తీసుకోమని ఉండ్రి అధ్యక్ష. మొత్తం కుంగిపోయి కుప్పగూలిపోతుంటే ఈరోజు అక్కడ నీళ్లు నింపడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేక పూర్తిగా ప్రాజెక్టు దెబ్బతిని ఖర్చు పెట్టిన 94,000 కోట్ల రూపాయలు వృధా అయిపోయి ఈరోజు మొత్తం ప్రాజెక్టే దెబ్బతిన్న పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి సమాధానం చెప్పుకోలేక శాసనసభకు రావాల్సిన ఉపనాయకుడు ఇక్కడ సభలోకి రాకుండా పారిపోయి ఈరోజు చర్చ చేద్దామంటే రాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని ఇట్లా మాట్లాడొచ్చా అధ్యక్ష? बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा में जलसे-आम को मुखातिब करते हुए कहा कि सियासत में जीत और हार एक मामूल है। बीआरएस डबल स्पीड से इख्तिदार में आएगी। साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आपाशी प्रोजेक्ट्स मरकजी हुकूमत को सौंपने के खिलाफ मुनक्किद एक जलसे-आम को मुखातिब किया। नलगुंडा में मुनक्किद होने वाले जलसे-आम में पार्टी के कारकुनान और किसानों की बड़ी तादाद देखी गई। केसीआर ने अपने खिताब में कहा कि सियासत में जीत और हार एक मामूल है, इख्तिदार किसी के लिए मुस्तकिल नहीं होता। बीआरएस दोबारा डबल स्पीड से
इख्तिदार में आएगी। केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आखिरी दम तक जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। उनकी सेहत साथ दे या ना दे, वो तेलंगाना की आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे। ఇదా మీ రాజకీయం, మీ చిల్లర రాజకీయం. మేడిగడ్డ కాడైనా ఉంటే అందులో 250 పిల్లలు ఉంటాయి, 250 300 ఉంటాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక ఆట బొమ్మ కాదు. 3 బ్యారేజీలు ఉంటాయి గోదావరి మీద, 200 కిలోమీటర్ల టన్నెల్స్ ఉంటాయి, 1500 కిలోమీటర్ల కాలువ ఉంటుంది, ఒక 19 సబ్ స్టేషన్లు ఉంటాయి, ఒక 20 రిజర్వాయర్లు ఉంటాయి. ఇదంతా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కాదట. ఒక 2-3 పిల్లర్లు కుంగిపోయినాయి. ఎన్నిసార్లు కుంగిపోలే? నాగార్జున సార్లు కుంగిపోలేదా? కడెం ప్రాజెక్టు గేట్లు కొట్టుకపోలేదా? మొన్నటిదాకా మూసీ ప్రాజెక్టు గేట్లు చక్కగా ఉండేదా? కొట్టుకపోలేదా? ఏదైనా పోతే సదరాలు దాన్ని మంచిగా చేయాలి, తొందరగా మంచిగా చేసి రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి. కానీ మేము మేడిగడ్డకు పోతాం, బొందలగడ్డకు పోతాం, ఇదా రాజకీయమా? ఇది తెలివి అనిపించుకుంటుందా? ఇవి కాదు కావాల్సింది, రాష్ట్రానికి ప్రజలకు కావాల్సింది. ఒక లోడొచ్చు, వాళ్ళు గెలవచ్చు, ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. మళ్ళా డబల్ స్పీడ్తో మేము అధికారంలోకి వస్తాం. అప్పుడు మేం గిట్లే మాట్లాడన్నా, ఈ పద్ధతి అనుసరించన్నా. कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए राजस्थान से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। राज्यसभा इंतखाबात 27 फरवरी को मुनक्किद होने जा रहे हैं। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी है। सोनिया गांधी को राजस्थान से नामजद किया गया। सोनिया गांधी ने आज जयपुर रियासती असेंबली पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उनके हमरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत के अलावा गोविंद सिंह दोतासरा व दीगर मौजूद थे। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के दूसरे रोज सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए किसान दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि सिंघू बॉर्डर से सामने आने वाली ड्रोन तस्वीर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। किसान बरादरी एमएसपी की कानूनी जमानत के अलावा स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद, किसानों और ज़रूरी मजदूरों के लिए पेंशन, किसानों के कर्जों की मुआफी, पुलिस मुकदमात वापस लेने, लखीमपुर खेरी तशद्दुद के मुतासरीन के साथ इंसाफ करने, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को बहाल करने और साल 2021 की तहरीक में हलाक होने वाले लोगों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। और दिल्ली चलो मार्च का आगाज किया गया है, लेकिन वो दिल्ली पहुंच नहीं पा रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन रहा। सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए किसान फिर राजधानी तक पहुंचने की कोशिशें करते देखे गए। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की तमाम सरहदें बंद कर दी गई हैं। सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। सरहद पर खारदार तारों और सीमेंट की रुकावटें नजर आ रही हैं, लेकिन किसान अपने मुतालिबात पर डटे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत उनके मुतालिबात को लेकर संजीदा नहीं है और तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो दिल्ली की तरफ मार्च करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को पार्टी उम्मीदवार नामजद किया है।
राज्यसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को पार्टी उम्मीदवार नामजद किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना से 3 निशिस्तों के मुंजुमला 2 निशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है, जबकि 1 निशिस्त बीआरएस के हक में जाने का इम्कान है। चूँकि रेणुका चौधरी पार्टी से कई सालों से वाबस्ता है और उन्हें कोई अहम ओहदा या टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन कांग्रेस क़यादत ने इस बार रेणुका चौधरी को मौका दिया है। दूसरी जानिब अनिल कुमार यादव, जो साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के फर्जंद हैं और तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्हें इस बार राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। अनिल कुमार की नामजदगी पर अंजन कुमार और अनिल कुमार को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस से राज्यसभा के लिए कई दावेदार थे। साबिक सदर वाईएस शर्मिला को भी तेलंगाना से राज्यसभा टिकट दिए जाने का इम्कान था। दूसरी जानिब सीडब्ल्यूसी रुकन कन्हैया कुमार को भी तेलंगाना से राज्यसभा टिकट दिए जाने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सदर आरएस प्रवीण कुमार ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जनवाड़ा गांव में आरएसएस और कांग्रेस के गुंडों के एक चर्च पर हमला करने, ईसाई तबके के लोगों और दलितों पर वहशियाना हमले की सख्त मजम्मत की और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बीएसपी सरबराह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जनवाड़ा गांव में ईसाइयों और दलितों पर वहशियाना हमले किए जाने की इतला देते हुए लिखा कि आरएसएस और कांग्रेस के गुंडों ने न सिर्फ ईसाई भाइयों और दलित भाइयों पर वहशियाना हमले किए हैं, बल्कि एक चर्च पर भी हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस के दौर इख्तियार में ये सब कुछ हो रहा है। आरएस प्रवीण कुमार ने तंज किया कि राहुल गांधी रोजाना सेक्युलरिज्म का प्रचार कर रहे हैं, जबकि आरएसएस और एबीवीपी से वाबस्ता रह चुके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपना असली रंग दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर तेलंगाना में मजहबी अक़लियतों पर जुल्म ढा रहे हैं। बीएसपी इस वहशियाना हमले की मजम्मत करती है और मुजरिमों के खिलाफ सख्त और फौरन कार्रवाई का मुतालबा करती है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और रुकन कौंसिल पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा तबाहशुदा मेदीगड्डा बैरेज का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने AIMIM के अराकीन असम्बली को हिदायत दी थी कि वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के हमरा मेदीगड्डा बैरेज का मुआयना करें। बेस्ट ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन, याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज, चार मीनार MLA मीर जुल्फिकार अली और MLC रियाजुल हसन आफंदी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और काबिनी वुज़रा के हमरा मेदीगड्डा बैरेज का मुआयना किया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने चंचलगुड़ा के करीब हादसे का शिकार होने वाले एक शख्स को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट असम्बली हल्के के बाग़े जहां आरा के रहने वाले शेख रजा चंचलगुड़ा मोइन होटल के करीब हादसे का शिकार हो गए। वो सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। MBT तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने, जो कि उस रास्ते से गुजर रहे थे, फौरन जख्मी शख्स को सड़क पर देखकर अपनी गाड़ी से नीचे उतर गए और उन्हें फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल करते हुए शेख रजा को मुनासिब इलाज फराहम करने के लिए RMO से बात की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने तेलंगाना के मुंतखब आज़मीन से हज अखराजात की पहली किस्त 15 फरवरी शाम 5 बजे तक अदा करने की अपील की है।
हज 2024 के लिए मुंतखब होने वाले हजरात को हज अखराजात की अदायगी के लिए तारीख में तौसी की गई है और हज फीस की पहली किस्त अदा करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की गई है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने मीडिया के जरिए तमाम मुंतखब आज़मीन जिन्होंने अब तक पहली किस्त अदा नहीं की है उनसे पुरजोर अपील की है कि वो कल शाम यानी 15 फरवरी की शाम 5 बजे तक 81,500 रुपये पर मुश्तमिल पहली किस्त जमा करवा दें। बीजेपी कबायली मोर्चा के रियासती सदर डॉक्टर कल्याण नायक ने हुकूमत की जानिब से 15 फरवरी को सेवालाल जयंती को इख्तियारी तातील देने पर सख्त एतराज किया। कबायली मोर्चा के रहनुमाओं ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एनसीसी गेट के पास पुरअमन एहतजाज किया और कबायली देवता सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इख्तियारी तातील को आम तातील में तब्दील करने का मुतालबा किया। डॉक्टर कल्याण नायक ने मीडिया को इस खुसूस में मुतफ़िका करारदाद की एक कॉपी भी दिखाई और 22 फरवरी को कोमराम जयंती के मौके पर भी आम तातील का ऐलान करने, संत सेवालाल महाराज और कोमराम भीम के हैदराबाद में मुजस्सिमे नस्ब करने का भी मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि कबायलियों के मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। दनियासना पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर कल्याण नायक ने तमाम गिरफ्तार अफराद की गैर मशरूत रिहाई की मांग की। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गाजबाका में स्कूली तुलबा ने 5 साल कबल पुलवामा में शहीद होने वाले फौजियों की याद में कौमी परचम के साथ एक रैली निकाली। रियासत जम्मू कश्मीर के पुलवामा के जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 14 फरवरी साल 2019 में एक धमाका खेज मवाद से भरा हुआ ट्रक फौजियों की बस से टकरा गया था, जिसके नतीजे में 40 फौजी शहीद हो गए थे। पुलवामा हादसे के आज 5 साल मुकम्मिल हो गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गाजबाका में स्कूली तुलबा ने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों की याद में तिरंगे के साथ एक रैली निकाली और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम ने दवासाजी की बड़ी कंपनी मेलॉन लैबोरेटरीज का एल्प्राजोलम तैयार करने का लाइसेंस मंसूख कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक डीसीए हुकाम ने संगारेड्डी जिले के पटनचेरू मंडल में वाक़ मेलॉन लैबोरेटरीज की जानिब से साइकोट्रोपिक मादे की गैर मजाज मुंतकिली के खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया है कि 21 किलो 250 ग्राम साइकोट्रोपिक मादा एल्प्राजोलम कुछ मुलाजिमीन के जरिए गैर कानूनी तौर से मुंतकिल किया जा रहा था। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने नशावर अद्वियात और साइकोट्रोपिक मादे तैयार करने वाली कंपनियों से कहा है कि वो अद्वियात और मादों की गैर मुजाज मुंतकिली या फिर चोरी को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें। दरियासना डीसीए ने दवासाजी की कंपनी मेलॉन लैबोरेटरीज का एल्प्राजोलम तैयार करने का लाइसेंस मंसूख कर दिया। शहरदाबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में एक सोने चांदी की दुकान में दिन दहाड़े सरखे की वारदात पेश आई। कुछ गुंडे दुकान के मालिक पर हमला करने के बाद कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। जराये ने बताया कि चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के अकबर बाग इलाके में कुछ गुंडों ने किस्वा ज्वेलर्स में तोड़ फोड़ की दुकान के मालिक पर हमला किया और कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। इतला मिलते ही ईस्ट जोन की डीसीपी जानकी धरावत मौके पर पहुंची और इस सिलसिले में तफसीलात इकट्ठा की। सुराग रसा टीम ने भी मौके पर पहुंचकर
इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की हैं और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया है। पुलिस का कहना है कि इस वाकये का मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान की तलाश की जा रही है। ज्वेलरी शॉप से कितने तिलाई जेवरात चोरी हुए उसकी अभी मुकम्मल तफसीलात का इंकशाफ नहीं हुआ है। तेलुगु में बोलो। क्या बोलो? जरा जोर से आवाज़। 3 जने आए ज्वेलर्स आपका नाम में। साहब? मेरा नाम महमूद है। क्या नाम से आपकी दुकान है? किस्वा ज्वेलर्स। कहाँ पर है ये एग्जैक्ट? ये मलकपेट अकबर बाग में है। क्या वाक़या हुआ आपको बता दें? डकैती हुई, 3 लोग आके जो है, मेरा लड़का अकेला था दुकान पे, उसके ऊपर हमला किए, अटैक किए। अटैक कर कर पूरा गोल्ड जो है, जो भी है, थैली में ऐसा डाल के भाग गए। कितने बजे हुआ है? ये 1:15 to 20 के दरमियान हुआ, एक 5 मिनट के अंदर। एक 15 to 20 लाख तक का एक अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट है मेरा, कि वो सर्च करने के बाद ही पूरा मालूम होता। केस वगैरह हार जो भी है पूरा डाल के चले गए। बच्चे के ऊपर बहुत भयानक अटैक करे, जिससे काफ़ी ज़ख्म है बच्चे को, टाँके वगैरह लगे। हॉस्पिटल में है बच्चा। 25-30 टाँके लगे बच्चे। कहाँ है बच्चा? हॉस्पिटल में है, क्या बोले? सही हॉस्पिटल में है। पहले एक आदमी आया अंदर, कुछ बताना है आइटम बोल के दिखाने के लिए, देखा वो देखते रहा। उतनी देर में 2 और आदमी है, वो थैले वगैरह लेके आए। थैली में जैसा अंदर आए वो लोग, एक जना अंदर आते हो कुर्सी पे से चढ़ के उसके ऊपर अटैक किया बच्चे के ऊपर चाकू से। बच्चा सेल्फ डिफेंस किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर चाकू से हमला करने से बहुत गहरा ज़ख्म आ गया बच्चे को। उस पर फिर उसको नीचे डाल के नीचे मार के, फिर और एक हेलमेट पे उसके बाद और एक आदमी आया, और एक आदमी जंप करके काउंटर के अंदर कूद गया। दोनों अंदर कूदे, एक जना बाहर था। ट्रे खोल के पूरे ट्रे थैले के अंदर डाल लिए, वो ट्रेस डाल लिए, पीछे से नेकलेस वगैरह हार वगैरह निकाल के डाल लिए। फिर वो बॉक्सेस थे जो डिस्प्ले के, वो बॉक्सेस भी लेके अंदर डाल देके उसको बच्चे के ऊपर अटैक करके, नीचे उसके ऊपर ठहर के अटैक करके उसको मार के फिर खुद के लेके निकल गए। गाड़ी पे बैठ के चले। नहीं, ओरिजिनल रियल गोल्ड है, आर्टिफिशियल भी है, लेकिन टोटल जो लेके गए लोग रियल गोल्ड है, पूरा कंप्लीट लेके गए। किसी पे शक है? नहीं, किसी पे तो शक नहीं है वैसा अपने लोगों को। कितने लोग थे? 3 लोग थे वो लोग। हाँ, पहले एक आदमी आया, पूरे जो है नोज पूरा, मतलब फेस पूरा पैक करा हुआ था। लोग का फेस किसी का नज़र नहीं आ रहा। लैंग्वेज कुछ अदर लैंग्वेज दिख रही, बल्कि बोल रहा था बच्चा, बोल के सुना मैं। यहाँ की लैंग्वेज नहीं दिख रही, वो कुछ अदर लैंग्वेज दिख रही बोल के बता रहा था। हाँ, पुलिस कंप्लेंट किए हैं, डीसीपी साहब, एसीपी सब आए हुए हैं, और ये फिंगरप्रिंट्स वो लोग भी आए हुए हैं, चेक कर रहे हैं पूरा। क्लोज वाले भी देख रहे हैं, पूरा आके देख के गए हैं, वीडियो वगैरह निकाल के पूरा वीडियो जितने भी है कैमरास में। तो आगे वो लोग चेक करके गाड़ी का नंबर भी दिख गया है, तो वो सर्च तो चल रहा है अभी। हैदराबाद के पुराने शहर के खानगी अस्पताल में एक नर्स के 20 दिन की लड़की के साथ मारपीट करने का वाकया पेश आया है। ज़माना क़दीम से डॉक्टर्स और नर्स मसीहा कहलाते रहे हैं और अस्पताल जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वालों के लिए उम्मीद की किरण रहे हैं। लेकिन दौरे जदीद में अस्पताल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बने हुए हैं। डॉक्टर्स और नर्स की तवज्जो भी मरीज की देखभाल और तीमारदारी के बजाय सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर ही मरकूज है। मसीहाई तो जैसे बहुत पीछे छूट गई है। नर्सें जिनके जिम्मे मरीजों की देखभाल और तीमारदारी होती है, अब वो हैवानियत पर उतर आई हैं और मरीजों को अजियतें दे रही हैं। तफसीलात के मुताबिक जहानुमा इलाके में वाक़े शालनीस फरहा नामी अस्पताल में एक 9 मौलूद लड़की को भर्ती करवाया गया था, जो कि इरखान से मुतासिर थी। डॉक्टर्स ने लड़की के तिब्बी मुआयने किए और 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए उसे आईसीयू में मुंतकिल किया। रात में ड्यूटी पर तैनात एक नर्स ने शीरखौर बच्ची को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके नतीजे में लड़की के गालों पर निशान पड़ गए। लड़की के वालिद ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया मारपीट के निशानात को देखते हुए उसे पैदाइशी निशान या फिर लाइट का इफेक्ट बताकर अपना पर्दा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नर्स की ये शर्मनाक हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लेकिन अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। लड़की के वालिद ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई है।
नलकुंडा में साबिक वजीर आला केसीआर के जलसे के पेश नजर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के दौरान एक कार की टक्कर के नतीजे में होमगार्ड मौके पर ही हलाक हो गया। जराये ने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के जलसे के पेश नजर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के दौरान पेश आने वाले सड़क हादसे में किशोर नामी होमगार्ड हलाक हो गया है। ये अफसोसनाक वाकया जिले के चरलापल्ली के करीब पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक सफेद रंग की एक कार जिसका ड्राइवर हालत नशा में था, उसने चरलापल्ली जंक्शन के करीब ड्यूटी पर तैनात किए गए होमगार्ड किशोर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। उस दौरान वहां से गुजरने वाली एक रुकने असेंबली की कार ने होमगार्ड को टक्कर मारी और होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। महलू की शिनाख्त नारकेटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड किशोर के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा तेज रफ्तारी के नतीजे में पेश आया। कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में एक टिफिन सेंटर के मालिक को बेवकूफ बनाते हुए 2 अफराद ने 8 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि कापरा और मल्लापल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमीन को धोखाधड़ी करने पर पकड़ लिया गया है। दोनों ने बेंगलुरु के रहने वाले एक शख्स को जेके जियागुड़ा में टिफिन सेंटर चलाता है ये कहकर बेवकूफ बनाया कि पुराने करेंसी नोटों की बहुत ज्यादा मांग है और लोग पुराने नोट मांग रहे हैं। अगर वो 10 लाख रुपए देगा तो उसे 1 करोड़ 19 लाख रुपए मिलेंगे। टिफिन सेंटर मालिक ने उनके झूठ पर यकीन करते हुए 10 लाख के बजाय उसके पास मौजूद 8 लाख रुपए की रकम उनके हवाले कर दी। मुतासिर शख्स का कहना है कि 2 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई पुराने नोट लेने नहीं आया। तब उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। द्वारक नामी शख्स ने पुलिस से राब्ता करते हुए दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कुलसुमपुरा पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।